विकसित विगासन की टीका हम विचार कर रहे हैं और उसमें बहुत सुंदर अर्थ, एक तो गाथा अद्भुत અને એના પછી જે ટીકા એ પણ ગજબ। ગાથામાં જીતેન્દ્રિય જીનપણા માટે અધિક છું આ શબ્દ વાપર્યો। શું કીધું? અધિક। આમ જોવા જઈએ ને અધિક શબ્દમાં અધિક શબ્દનો અર્થ બહુ જ અધિક થઈ શકે છે। જે વસ્તુમાં તમને એમ ખબર હોય, हम कही ना गुरु गुरु ही होता है, हम कही जो तुम्हें भान हो ना तो पची तुम माथाकूट ना करो। खबर है हमने कि तू भले हम कहे थे તમે જેમ પૈસામાં બહુ સંપન્ન હો અને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ તમારી સામે આમ વોલેટ ખોલીને 500 રૂપિયા ખર્ચ કરી દે ને 1000, આવું ઘણી વખત થાય છે। રસ્તો દોડાવવાનો હોય ને બતાવવાનું હોય, આપણે શું નથી ઠીક છે હવે એનો મન થઈ રહ્યો છે કરવા દો, આપણે ખબર છે ને આપણે કોણ છીએ। દાનમાં એવું ઘણી વખત થાય છે કે જેને એમ કહી ભાઈ હું તો દાન કરી શકું છું ગમે તેવું, પણ જેમ કે આપણી ગણતરી હોય તો મને 25,000 આપવા છે તો બોલી રૂપે ના આપે। બીજે જોઈ રહ્યા છે કે એ લોકોને હજી પહેલો ભાવ આવે છે કે એના કરતાં 2 વધારે આપું, એના કરતાં 2 વધારે આપું, એ લોકોને ચાલતા તમે આવી રીતે લઈ લો, બાકી મને તો ખબર છે જ્યારે પૂછે ત્યારે હું આપી દઈશ। એટલે આ કહેવાય અધિકતાનો માન, કે જ્યારે તમને આ ખબર હોય કે હું એ બધા બાલ ગોપાલની ક્રીડાઓથી અધિક છું, આ બધા ધનના ધંધાઓથી અધિક છું, હું આ બધા જ્ઞાનથી અધિક છું। કોઈ તમારી સામે જ્ઞાનમાં બહુ બોલતો હોય અને આ પણ તમને ખબર પડતી હશે કે ઓછો જાણે છે વધારે બોલે છે, અને જે ખરેખર કમ્પ્લીટલી જાણે છે એ શાંતિથી બધું સાંભળે, બરાબર। તો ક્યારે પણ કોઈ જે જાણનાર માણસ હશે ને ઓછા જાણનારા વાળે માથાકૂટ નહીં કરે, એટલે એને ખબર છે નહીં, પેલા આખો કોન્સેપ્ટ સમજાવવું પડે, પછી બતાવવું પડે કે તારી માન્યતા ખોટી, એટલો ટાઈમ કોની પાસે, તું બનતો રે ડાયો। સમજાય કે આ નિયમ છે જગતનો। એટલે જે જેમાં અધિક હોય એ એવી શાંતિને પામે છે। એમ અહીંયા કુંદકુંદાચાર્યએ કીધું કે ઇન્દ્રિય છે ને એ અપૂર્ણ છે, અધૂરી છે, અને ભગવાન આત્મા કેવો છે એના કરતા અધિક છે। એટલે ઇન્દ્રિયો પોતાનો કાયફો કરે, બધું કરે, પણ એ ભગવાન આત્મા હું જાણું છું ભાઈ અત્યારે ઇન્દ્રિયો એના બધું પરાક્રમ કરી રહી છે, પણ હું તો એનાથી અધિક છું। એમ જાણીને એ બાજુથી ખસી, બરાબર। આ મૂળ જીતેન્દ્રિય જીનપના પામવા માટેની પ્રારંભિક સહજ। પછી ટીકામાં એના કરતા વધારે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય આગળ વધે અને મેં ઇન્દ્રિય શબ્દના 3 અર્થ કર્યા છે। કયા કયા? સૌથી પહેલા દ્રવ્યેન્દ્રિય, પછી ભાવેન્દ્રિય, અને ત્રીજા નંબર ઇન્દ્રિયના વિષય। એટલે આ સમજો, આ આંખ છે ને, આંખ એ તો ઇન્દ્રિય છે, એ આંખને જે ખંડ ખંડ કરીને જાણે છે એ જ્ઞાન કોણ છે? એ પણ ઇન્દ્રિય છે। આ 31મી ગાથા, ખંડ ખંડ છે જ્ઞાન, એ પણ ઇન્દ્રિય, અને આંખ વિષય બનાવે છે માઇકને તમને, તો તમે પણ ઇન્દ્રિય છો। તમે આત્મા છો કે ઇન્દ્રિય છો? ઇન્દ્રિય છો। મારા માટે ઇન્દ્રિય છે, તમારા માટે તો આત્મા જ છે, હું તમારા માટે ઇન્દ્રિય છું, બરાબર કે? એટલે ઇન્દ્રિય જેને વિષય કરે એ પણ ઇન્દ્રિય, સમયસાર પણ ઇન્દ્રિય છે, મોબાઈલ, ટીવી, ફોનગઢ, જ્યાં જ્યાં આપણે જઈએ એ બધું શું છે? ઇન્દ્રિય જ છે। ખ્યાલમાં આવે છે? એમાં દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય આપણી નથી, એના માટે શું કરવું પડશે? અહીંયા બતાવ્યું હતું દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયોમાં કોને ભિન્ન ભિન્ન ભાષે, જે સૂક્ષ્મ, જો અહીંયા આપણે કહીએ અહીંયાથી
निर्मण भेद अभ्यासनी प्रवीणता थी प्राप्त जे अंतरंगमा प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव तेना अवलंबन न बल बड़े सर्वथा पोताथी जुदी करे छे ए द्रविंद्री ने जीभूत है। इंद्रिय भिन्न है लेकिन भेद ज्ञान की स्पष्टता के बिना तुम्हें भिन्न दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से इंद्रिय भिन्न है लेकिन भेद ज्ञान की स्पष्टता के बिना तुम्हें भिन्न नहीं दिखाई दे। जैसे पहले वो नहीं ध्यान लगाओ दर्शन पाओ होता था ना, अब वो तो प्रतिमा है कि नहीं, ऐसे ऐसे वो होता था ना, फूल 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 से देखते थे बराबर, और उसमें सामान्य आप देखो तो प्रतिमा दिख जाएगी, नहीं दिखती ना, देखा है प्रयास किया पहले बहुत आता, तब तो दिखता भी नहीं वो बहुत अरे हाँ महावीर भगवान के दर्शन, और जिसको जो कागड़ आवे एक ऐसा होता था, हाँ छोटी छोटी फूल फूल दिखते थे, हाँ 3D नहीं कह सकते उसको, 3D से थोड़ा अलग टाइप का था, उसमें प्रतिमा होती थी, प्रतिमा होती थी, ऐसे नहीं दिखती थी, कंसंट्रेट करके देखोगे तो तुम्हें वहां एकदम स्पष्ट भगवान दिखाई देंगे। अब उसके लिए दिक्कत ये है कि सबसे पहले एकाग्रता और दूसरे नंबर अभ्यास। जिससे एक जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी देखिए पापा मुझे देखने दो, यहाँ भी पापा मुझे देखने दो, दिखेगा बराबर। तो क्या पहले नंबर एकाग्रता आपकी होनी चाहिए, अपने आप उसको देखते जाओ वो दिख जाएगी, आपने आपको देखूं तो नहीं दिखेगी, आप बस सहजता के साथ देखते जाओ वो खुद दिख जाएगी। लेकिन एक बार अभ्यास हो गया तो फिर वो कोई कितना ऐसे खींचे ना तो वो दिख जाएगी। लेकिन जिसने ना तो कभी एकाग्रता की और अभ्यास भी नहीं किया, अब वो क्या हमें तो दिखती नहीं है, हमें तो दिखती नहीं है इसलिए है नहीं, ऐसा नहीं है। तो तू एकाग्रता पूर्वक देखेगा तो दिखाई देगी, और एक बार दिखाई दी तो चलते फिरते भी देख लेगा, और एक बार नहीं दिखाई दी तो ऐसे करते करते आगे घुसा भी लेगा कुछ भी तो भी नहीं दिखे। लेकिन सबसे पहले क्या करना, जो चीज विद्यमान है उस पर एकाग्र हो, ये पहली शर्त है बराबर। फिर ऐसा स्वीकार करो कि ये जो पत्तियां हैं ये पत्तियां नहीं हैं, ये प्रभु है, वहां है, धीरे धीरे अपने आप प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हाड़ मांस की इंद्रियां दिखाई दे रही हैं ये मैं नहीं, ये तो शरीर का परिणाम है, शरीर तो जड़ है और जड़ में कैसे हो सकता हूं, ये शरीर क्या इंद्रियां है ना, ये चेहरे का नैन नक, कानों की कान आँख नाक, ये सब जो सुंदरता के हमारे पैरामीटर हैं, ओहो ये सब जड़ता के चिन्ह हैं, इतना नहीं है, मोही है। लेकिन हम लोग दूसरे की तारीफ में खुद मुग्ध होते हैं, जगत में दूसरे की प्रशंसा होती है तो अपने आप से अपने आप को भिन्न मानते हैं, और कई बार ईर्ष्या करने लगते हैं कि इसकी क्यों कर रहा है, मेरी क्यों नहीं कर रहा है, होता है कि नहीं होता है? एक बार ये इंद्रियों से कर लो ईर्ष्या कि कोई शरीर की तारीफ करे तो क्या मेरे अंदर में कोई आत्मिक गुण बचा नहीं कि इसे चमड़े की तारीफ मिल रही, ऐसा भाव होना चाहिए। मेरे अंदर में क्या मेरी आत्मा क्या गुण शून्य हो गई है जो सब इस चमड़े के पीछे पड़े, लेकिन चमड़े के साथ इतना तन्मयपन है कि ये है सो मैं हूँ, ये है सो मैं हूँ, ये है सो मैं हूँ। ओहो भाई ये इसमें है तू तेरे में है, ये तेरे में नहीं तू इसमें नहीं, इसके गुणधर्म तेरे नहीं, तेरे गुणधर्म इसके नहीं। लेकिन अब ये यहाँ तो सब याद आता है, सबको समस्या इतनी है,
यहाँ सब याद आता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। समय सार की चाबी भरा रही ना यहाँ पे, तो भिन्न दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है। बाहर निकल कर हाँ सर्दी में थोड़ा चेहरो आम थे, हाँ बराबर है, ख्याल में આવે છે। હા તમારો ચહેરો તો શરદીમાં એકદમ ચમકે છે, શું કરો છો? હા खुश, बस पती गई। એટલે शरीर की अवस्था ये मेरी नहीं है, ये हमेशा, इसके लिए क्या करना पड़े? पहले नंबर शरीर में नहीं हूं ऐसा निर्मल वेद अभ्यास करे। निर्मल शब्द पे भी जोर दिया था, अभ्यास पर भी जोर दिया था। निर्मल कह के मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई डबल स्टैंडर्ड नहीं, सांत्वना के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए करो, बराबर। कोई दूसरे की रूप की तारीफ कर रहा हो और उसको हीन दिखाने के लिए शरीर साथी सुंदर છે પણ ગુણોમાં તો કઈ નથી, આમ કરીને ઈર્ષ્યા પૂર્વક તમે ભેદ જ્ઞાન કરો। શરીર રૂપાળો પણ ગુણ ખરા કાળા, આજે કે ભેદ જ્ઞાનની વાત નથી, આ અંદરની કાલીમાં જ। કેમ કે તમે આત્મા જોઈ પણ શા માટે? ઈર્ષ્યાથી, કશાયથી, આમ। इसलिए निर्मल वेद अभ्यास करो, अभ्यास करो। पहले सहज नहीं होगा, पहले बुद्धिपूर्वक ज्ञान करना पड़ेगा और उसके बाद सब चीजें सहज होती है। समझ में आया? पहला शू करવું પડે? बुद्धिपूर्वक कोई भी चीज। आज अल्फाबेटिकल भी आप जो लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, वो भी सहज नहीं था। आज जो भी स्कूटर बाइक कार आप चला लेते हो, वो भी सहज नहीं था। अरे सीढ़ी चढ़ना भी सहज नहीं था। हर चीज आपने अभ्यास करके दी, तो क्या आत्मा का डिश में मिल जाएगी? बुफे सिस्टम है क्या आत्मा का? है कि जाओ कोई डिश लगा के दे दो, खाओ और अनुभवी होकर वापस आ जाओ। है भगवान आत्मा के अनुभवन का बुफे सिस्टम नहीं। भगवान आत्मा का अनुभवन ऑनलाइन ऑर्डर से नहीं हो सकता। भगवान आत्मा का अनुभवन तो निर्मल वेद अभ्यास से होता है। अनादिकालीन यही नियम है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अघाव। क्या नियम है? बनाएगा कौन? आप बनावे। खाएगा कौन? आप ही खावे। और खावत नाही अघाव, कि खाते खाते कभी तृप्त ना हो, ऐसा अनंत गुणों का मधुर मधुर स्वाद है। चल देखो ये अपने द्रव्येंद्रियों का क्या। अब देखो भावेंद्रिय का क्या कहते हैं, इनमें आपको भावेंद्रियों का स्वरूप भी ख्याल में आता है, और वो मैं नहीं हूँ। अब देखो गजब है ना, इंद्रियें तो जड़ है लेकिन मैं नहीं हूँ, लेकिन भावेंद्रिय तो चेतन है, ज्ञान की पर्याय है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं वो भी तू नहीं, मतलब पर से तो भिन्नता की, लेकिन स्वा का भी कोई अंश ऐसा है जो सनातन नहीं। और जो यानी देखो दो चीजें आ रही हैं, एक तो जो मैं हूं, जो मैं निरूपाधिक हूं, और जो मैं त्रिकाली हूं। क्या बोला? जो मैं हूं, निरूपाधिक हूं और त्रिकाली हूं, वो मैं। जो मैं नहीं हूं, केवल उतने मात्र से तो मात्र द्रव्येंद्रिय पृथक होती। जो मैं नहीं हूं इतने मात्र से तो क्या पृथक होती? केवल द्रव्येंद्रिय शरीर, क्योंकि शरीर और में जड़ चेतन जाति के हैं। लेकिन भाव इंद्रिय तो जीव का अंश है, लेकिन वो भी मैं नहीं। उसे क्यों इंद्रिय में बोला? बोले वो त्रिकाली नहीं, निरूपाधिक नहीं। निरूपाधिक समझ गए ना? उपाधि है, उपाधि से स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव होता तो मेरा मान लेता। तुम कहते हो खंड खंड भावेंद्रिय मेरी होती, कब होती? जब ऐसे की ऐसी रहती। जैसे एक एक पेज करके हम पढ़ते ना, खंड खंड समय सा, बराबर सर्वगोमान ऐसे ही पढ़ते होंगे। हाँ हमेशा नहीं पढ़ते, वो गलत। सर्व सिद्ध भर गए ऐसे समय साथ नहीं पढ़ते।
कि समय सार हम पढ़ रहे अभी द्रविंद्री भावेंद्री के द्वारा, इसलिए आंख से देख रहे और खंड खंड करके जान रहे। खंड खंड करके जानना मतलब क्या? कल 30वीं गाथा पढ़ी थी, आज 31वीं पढ़ रहे, कल 32वीं पढ़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है? खंड 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 खंड। कौन सा ज्ञान है? खंड। ओह भाई, इतना अपाहिज ज्ञान का स्वरूप नहीं है। पता है, आज हम हैं जो 2 मिनट पहले सुनी हुई बात को याद नहीं रखते और ये मानते तुम्हारा ज्ञान कमजोर हो गया है। अरे नहीं, तुम्हारा ज्ञान सर्वज्ञ से रत्ती मात्र कम नहीं, लेकिन तुम उस ज्ञान को भावेंद्री द्रविंद्री के द्वारा व्यक्त करते हो, इसलिए टूटा फूटा मिलता है। ऐसा समझो। आई कि नहीं बात? समझ क्या कहना चाह रहा है? कभी आपने देखा चींटियां, कीड़ियां होती, कीड़ियां, एक बिस्किट पड़ा हो या कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हो, तो आप तो ड्राई फ्रूट को पूरा खा सकते हो, बराबर, क्योंकि आपका मुंह बड़ा है, हाथ बड़ा है, खाना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन कीड़ी का मुंह छोटा है, इसीलिए कैसे करती हो? एक ड्राई फ्रूट पिस्ता हो ना, पिस्ता, तो उसके अंदर 500 चींटियां घुस जाएंगी और सब एक एक कण कर 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 करके ले जाए। तो क्या अब कीड़ियों में कोई ऐसा विचार करे, इतना बड़ा पिस्ता कोई एक बार में खा सकता है? हम तो 500 नहीं खा पा रहे मिलकर, और वो एक बार में खा जाएगा। उसे क्या पता कि बड़े बड़े डायनासोर बैठे जो पिस्ता नहीं, पिस्ता रोल खा जाए। तो बात पिस्ता की नहीं, बात चींटी की क्षमता की। चींटी जैसे अपने छोटे मुंह के कारण वो सूखे मेवे या बिस्किट जो अपन अखंड करके सेवन करते हैं, उसकी उतनी सामर्थ्य नहीं होती, तो कैसे जान खाती है? कण कण करके इकट्ठा करती है। उसकी गोडाउन में अगर एक पूरा पिस्ता डाल दिया जाए तो लैंडस्लाइडिंग की घटना हो जाएगी, हो जाएगी। इसीलिए वो क्या इकट्ठा करती है? कण कण इकट्ठा, छोटा सा कण। एक कीड़ी, मतलब देखा होगा, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, इतने से में 5 कितनी कीड़ियां हो जाती जरा। तो सामर्थ्य पिस्ते की कम है ऐसा, ज्यादा है ऐसा नहीं है। सामर्थ्य चींटी की कम है। अब ऐसे गिनेओ की सामर्थ्य कभी ज्यादा नहीं होती, सारे में एक साथ आत्मा में जानने में आ सकते आते हैं। ज्ञान को ज्ञान से व्यक्त करो तो अनंत ज्ञे एक साथ जानने में आएंगे। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान को ज्ञान से व्यक्त करो तो अनंत ज्ञे एक साथ जानने में आएंगे। लेकिन जब ज्ञान ज्ञान रूप में व्यक्त नहीं होता, इंद्रिय और मन के द्वारा व्यक्त होता है, तो आदमी भी कीड़ी के जैसे कण कण करके खंड 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 जानता है। तो जो खंड खंड जाने वो ज्ञान नहीं। समझ में आया? जैसे स्वस्थ मनुष्य हो ना, एक बार में पूरा पावर ग्रहण करता है। बीमार हो तो क्या करना पड़ता है उसे? कहीं पाइप से देना पड़ता है, कहीं मिक्स करके देना पड़ता है, कहीं नली से देना पड़ता है। अलग अलग तरीके से देते ना, जब बीमार होता है व्यक्ति को, तो जो अलग अलग तरीके से देना पड़ रहा है, ये उसके स्वास्थ्य का चिन्ह है कि बीमारी का? ऐसे जो खंड खंड करके जानना हो रहा है, ये तुम्हारी संसार नाम की बीमारी का चिन्ह। समझ में आया? कौन सी बीमारी? लक्षण क्या? बोल, अखंड जान रहे कि खंड खंड जान रहे? हाँ, खंड खंड जान रहे ना, संसार की बीमारी है। स्वभाव नहीं है ऐसा तुम्हारा, स्वभाव नहीं है। 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थों को एक साथ अपने में रहकर जानो,
ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति काले शू कीधु तू આજે શું કીધું છે આ ક્યારે થયો પેલો ક્યારે થયો આવા લક્ષણો સાથે જાણે એ તારા સ્વાસ્થ્યનો નથી પ્રભુ તારા માંદગીનો જીવ છે આમ અને એ માંદગી કઈ છે સંસારની માંદગી છે અને સંસારની માંદગીમાં શું થાય કે તારો જ્ઞાન અખંડ રૂપે પ્રવર્તન કરતો નથી જ્ઞાન ખંડ ખંડ થઈને પ્રવર્તિત થાય છે એમ અહીંયા કહેવામાં જો અહીં લખ્યું છે ને એ જુદા જુદા મળ્યું બધાને ફૂલ સ્ટોપ પછી જુદા જુદા પોતપોતાના વિષયોમાં વ્યાપારપણાથી જેઓ વિષયને ખંડ ખંડ ગ્રહણ કરે છે અર્થાત જ્ઞાનને ખંડ ખંડ જણાવે છે એવી ભાવેન્દ્રિયો ભાવેન્દ્રિયો का लक्षण हो શું કીધું જુદા જુદા ગ્રહણ કરે आप भोजन करते ना भोजन अपन कैसा भोजन चाहिए बोले सुगंध वाला स्वादिष्ट है ना कड़क नहीं थवू चाहिए पोचू है ना फिर उसके बाद दिखने में क्या बोलते हैं गार्निश गार्निश करते हैं ना प्लेट को डिश को जब सजा के देते हैं तो मतलब हमें क्या चाहिए उस भोजन में पांचों इंद्रिय के विषय चाहिए चाहिए नहीं पड़ते नहीं पड़ता है होता ही नहीं होता तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलना चाहिए है और भूत की स्मृतियां भी होनी चाहिए समझ में आया अब हम भोजन कर रहे हैं अब भोजन करने में त्वचा उसकी सॉफ्टनेस को जान रही जिह्वा उसके स्वाद को जान रही घ्राण उसकी सुगंध को जान रही चक्षु इंद्रिय ये जान रही है इसे कितने अच्छे से सर्व किया है और करण इंद्रिय क्या जान रही है कि पीछे सुंदर संगीत बन रहा है बज रहा है और मन क्या कर रहा है उस भोजन के साथ अरे भोजन तो निमित्त है बैठ के बातें करेंगे ये तो पूर्व की अतीत की यादें और भविष्य की कल्पना ना सपने ये सब चल रहा है और ये सब मिलकर अपन को क्या स्वाद आ रहा है कल मेरे एक रिश्तेदार ने इंदौर की होटल है प्राइड होटल है तो लिखा स्टेटस लिखा हो विथ प्राइड एट प्राइड गर्व के साथ कि बड़ी होटल है क्या पता नहीं गजब है भैया रिग्रेट की चीज को प्राइड बोलते अब क्या करें रिग्रेट होना चाहिए प्राइड की जगह पे रिग्रेट पूर्वक हमें मतलब दुख पूर्वक के कारणवश परिस्थिति में आना पड़ा लेकिन हेडिंग क्या थी विथ प्राइड हेट प्राइड और नीचे तो फिर और अलग अलग इमोजी वाले तो जिंदाबाद रहते ही हैं मफत के पाप बांधने वाले मफतिया है वो खा रहा तुम डिलीशियस कर कब खाइए समझ में आएगी लेकिन क्या करें भाई आत्मा के भगोड़े रामों को अनात्मा में सुख दिखता है समझे कि नहीं समझे जो आत्म सुख से भागते फिरते हैं बराबर उन्हें उन्हें अनात्मा में यानी ये सब चीजों में सुख दिख रहा है अरे भाई भोगों में जाना विथ प्राइड नहीं होता ज्ञानी के भोगों में जाना विथ रिग्रेट होता है ओ प्रभु अपनी प्रभुता नहीं है स्वादी इसीलिए पांच इंद्रिय के विषयों में जाना पड़ता हे प्रभु सर्वज्ञ नहीं हुए इसीलिए खंड खंड करके जानना पड़ रहा है इन चीजों को सर्वज्ञ भगवान को युगपत जो चीज तुमने खाई है जो खा रहे हो और जो खाओगे उनका पूरे पदार्थों विषय का पूरा ज्ञान युगपद होगा खंड खंड करके नहीं अच्छा कुदरती कई बार होता है ना वो सूंघते तो आंख बंद हो जाती है होता है कि नहीं होता है आप प्रैक्टिकल करके देखना जनरली जब आप किसी को इंटेंशनली सूंघते हो ना इंटेंशनली दुर्गंध आ जाए वो नहीं कह रहा
लेकिन इंटेंशनली कोई पूछे, आप देखो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हुई, क्यों? क्योंकि तब आपका दिमाग कह रहा है कि अभी मुझे सुगंध लेने दो और डिस्टर्ब मत करो। नेत्र उस सुगंध में बाधक बन गए। ऐसा सब में होता है, क्योंकि ये तो विज्ञान भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है कि ज्ञान का सूक्ष्म एक समय एक जगह व्यक्त होता है। ये विज्ञान भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। इसीलिए जब कोई भोजन करते समय आपसे स्वाद पूछता है, बराबर, तो आपको केवल वही चीज याद आती है, दूसरी चीज नहीं ख्याल में। जो काटी छे बाकी कड़क छे की पोची पूछे तो दूसरी चीज याद नहीं आती, क्योंकि जो अल्पस छद्मस है ना, हम जैसे जी, हमारा ज्ञान दो जगह नहीं जा सकता। या तो वो रस को जान रहा है, या वो रूप को जान रहा है, या वो गंध को जान रहा है, लेकिन ये सब प्रोसेस इतनी तेज होती है कि हमें सब एक में एक लगता है। खासकर टीवी वगैरह देखते टाइम पे आपको कभी फील ही नहीं होता कि उस समय अंतर पड़ रहा है। जिस समय दृश्य देख रहे हो उस समय ही शब्द सुन रहे हो, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन भगवान कहते हैं और विज्ञान भी कहता है कि जिस समय तुम सुन रहे हो उस समय देख नहीं रहे, और जिस समय देख रहे हो उस समय सुन नहीं। पता है, फील करके देखना। और लोग तो उसमें देखने सुनने के पॉपकॉर्न भी खाते हैं, जब खाते हो तब तो कुछ भी नहीं कर रहे हाँ, ये सब इतने सूक्ष्मता के साथ में परिवर्तन करता है, लेकिन वो है। आप अगर विज्ञान में पढ़ेंगे ना, साइंस ऑर्गन में, तो उसमें भी यही होता है। जैसे मैंने छुआ ना, इसकी ये जो भी स्पर्श मुझे कैसे हुआ, ये इंद्रिय ने आपको संकेत ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने डिटेक्ट किया, ब्रेन ने फिर रिस्पॉन्स किया कि भाई ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो इतनी प्रोसेस हो गई। आपको देखा जैसे छुआ वैसे ही, ऐसा नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस हो जाती। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जलने पर तुरंत पता नहीं चलता, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जल गया, अरे जल गया। हाँ, माता बहनों को तो बहुत पता होगा। तवा कई बार लगता है वो, और उनको तो आइडिया नहीं होता। जैसे मेरी मम्मी पहले सिगड़ी पे करती थी ना काम, तो अंगारा उठा के डाल देती थी, वो क्या करे जल जावे, बोले मुझे पता है कब जलता है कब तक नहीं जलता। यहाँ उठा के ऐसे इतने में नहीं जलता, और मैं करूँ बोल तू जल जाएगा। कितनी तेजी से वो काम करना है वो तुम्हें बस की बात नहीं है। तो ये है कि भाई ज्ञान का स्वभाव और इंद्रियों की पराधीनता दोनों के बीच को समझो। और ज्ञान स्वभाव वो मैं, और ज्ञान स्वभाव में लोकालोक के अनंत पदार्थ एक साथ झलकते हैं। ऐसा ही मैं हूं, ऐसा ही मेरा स्वभाव। एक एक करके जानना पड़े, ये तो संसार की बीमारी का चिन्ह है प्रभु। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत सारे लोग कहते हैं दुख में हो तो याद आए ना कि तुम संसार में हो, ऐसे ऐसे कहते ना। कोई कुछ लोग बहुत सुनी सुनाई बातें ज्यादा करते हैं ना, तो ऐसी बातें बहुत करते हैं। आज थोड़ा घणो दुख मळे ने तो खबर पड़े ना આપણે ભગવાન નથી થયા। એ ભગવાન નથી થયા એના માટે દુઃખની રાહ ના જો। લોકાલોક જાણવામાં આવતો નથી, એનાથી સિદ્ધ થઈ જાય છે કે તમે કોણ છો। હજી સંસાર રૂપી બીમારીને લઈને ચાલો। पाप के उदय में तुम्हें तुम्हारी भगवत्ता याद आए, पाप के उदय में तुम्हें सिद्धों का सुख याद आए, इतनी रिस्क क्यों लेते हो? तो रिस्क हुई ना कि भाई जब ये होगा तब याद करेंगे। ये तो वही बात है, मरण समय में समाधि लेंगे। अरे मरण समय समाधि नहीं, जीवन आराधना, जीवन कल्याण आत्मानुभवन पूर्वक होता है, आत्मस्मरण पूर्वक नहीं। तो जब जब भी आपको हर ज्ञ ये बताता है ओ अखंड ज्ञान नहीं है, हम संसारी हैं, अखंड ज्ञान नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है,
ये खंड खंड होके जो व्यक्त हो रहा है ये मेरा स्वभाव। बैंक में आप के लाख रुपए पड़े हो और आपको लाख रुपए की जरूरत हो, बराबर, और आप बैंक में जाओ और बैंक वाले से कहो कि लाख रुपया दो, बोले साहेब गवर्नमेंट नो नियम છે 1 દિવસમાં 100 રૂપિયા જ મળશે। હવે એ લાખ રૂપિયા લેવા માટે તમને કેટલા ધક્કા ખાવા પડે? 1000 ધક્કા ખાવા પડે। હવે તમે ઝઘડા કરશો કે નહીં કરો? મારો પૈસા મને કેમ નહીં આપો? લાખ કોને છે પણ 100 ના કટકામાં આપે તો? नोटबंदी मिलते थे ना 4000 मिलते थे ना दिन के, कैसे मतलब करोड़ों पड़े और दिन के 4000, कैसी हीनता लगती थी। अरे अनंत को जानने की लायकात वाला प्रभु और गाथा नंबर याद नहीं, प्रवचन का एक वाक्य याद नहीं होता, कहीं कीधु तो कहीं कीधु तो कहीं कीधु तो शू कीधु तो મને ખબર નથી, પણ થોડું શરૂ કરો પછી સમસ્યા છે ને, સ્ટાર્ટ કરાવો પછી છેલ્લે પહોંચાવી દઈશું, પહોંચી તો પહોંચી નહીં, તમે તો છો એ ક્યારે દૈન્યતા અનુભવ નથી થતી? તમારા જ બેંકમાં પડેલા લાખ લાખ રૂપિયા તમને કટકા કટકામાં મળે 100 રૂપિયાના, તો તમને કેવી દીનતા અનુભવ થાય, કેવા ખીજાઓ તમે, ઓહો મારો પૈસા મને નથી મળતો, મારા પૈસા માને મને ધક્કા ખાવું પડે છે, સરકાર ખોટી છે, મોદીજી હાય હાય। અને અહીંયા પોતાના સ્વભાવમાં પડેલો અનંત જ્ઞાન જે તારો સ્વભાવ છે અને એને કટકા કટકા રૂપ કરે અને ક્યારે રિગ્રેટ થતો નથી, દુઃખ થતો નથી। એ વાત यो मेरा स्वभाव पूर्ण प्रभु लोकालोक को जानने वाला, और उसे अंताक्षरी में कौन सा गाना आना चाहिए वो याद नहीं आता, समझना है कि नहीं है? ये बता रहा है कि प्रभु ये जो आत्मा का ज्ञान है जो अखंड रूप से व्यक्त होने वाला स्वभाव है वो किस रूप में हो रहा है? खंड 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 रूप, हर जगह यही हो रहा है ना। देख अब आगे बताते हैं। अब ये तो है भावेंद्री का लक्षण, अब वो आत्मा में क्यों नहीं है वो बताते हैं। विषयों ने खंड खंड ग्रहण करे थे एवी भावेंद्री ने प्रतीतिमा आवता अखंड एक चैतन्य शक्ति पणा वड़े सर्वथा પોત્યાથી જુદી જાણ એ ભાવેન્દ્રિયનું જીતવું થયું। શું કીધું ત્યાં? એ बोले सबको एक साथ जानना ये तो बाद में होगा, तो तब हम भावेंद्रिय को बाद में जीतेंगे क्या? बोले नहीं, भावेंद्रिय को जीतकर भगवान बना जाता है, भगवान बन के भावेंद्रिय नहीं होती, जीती जाती। समझो दोनों में अंतर। क्या बोला? बोले पंडित जी आपने जो बोला उसके हिसाब से हमें ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि जब तक संसार में रहेंगे तब तक खंड खंड जानते रहेंगे, इसलिए जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक भावेंद्रियों को नहीं जीत पाएंगे। बराबर? नहीं, भगवान बनकर भावेंद्रिय को नहीं जीता जाता, भावेंद्रियों को जीतकर भगवान बना जाता। जितेंद्रिय जित आई कि नहीं बात सुन? तो अब गजब है कि हालत और सिनारियो ये है कि संसार में हमें जब तक हम हैं तो हम खंड खंड जानने वाले ही हैं, तो जितेंद्रिय पना कैसे प्रकट करें? बोले रुको, ज्ञान खंड खंड जान रहा है, वो खंड खंड ज्ञान की साइड से है कि ज्ञेय की साइड से है? ज्ञान तो अखंड है, ज्ञेय की साइड से देखते हो तो खंड खंड दिखा।
आई कि नहीं ये बात समझ में? फिर लाइन को समझो जरा, पहले दो बातें समझो। भगवान बनकर जितेंद्रिय नहीं हुआ जाता, जितेंद्रिय होकर भगवान बना जाता है, ये सिद्धांत बराबर। भगवान बनकर भावेंद्रियों को नहीं जीता जाता, भावेंद्रियों को जीतकर भगवान बना जाता है। फिर कोई कहे कि हम तो जब तक रहेंगे तब तक तो खंड खंड ही ज्ञान रहेगा, और खंड खंड ज्ञान रहेगा तो जितेंद्रिय जिनपना कहाँ से प्रकट होगा? बोले रुको, ज्ञान में जो खंड खंडपना है, क्या बोला? ज्ञान में जो खंड खंडपना है वो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ज्ञेय के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ज्ञान तो ज्ञान रूप में व्यक्त हो रहा है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम 415 गाथा एक साथ नहीं पढ़ पा रहे। ज्ञान तो ज्ञान रूप में व्यक्त हो रहा है, हमारी समस्या ये है कि हम 415 गाथा नहीं पढ़ पाते। इसलिए 1 2 3 4 ऐसे कर करके क्रमशः पूरी गाथाएं हम पढ़ते हैं। ये कौन है? ये हम हमारी लिमिटेशन के कारण ज्ञानियों को एक एक करके जानते हैं। अब देखो समझना, जो ज्ञेयों को एक एक करके जानना हो रहा है, उस समय ज्ञान नया नया है कि एक जैसा ज्ञान व्यक्त है। बोले ज्ञान तो ज्ञायक से एक जैसा निकलता है। हाँ, उस ज्ञायक में ज्ञान में ज्ञेय अलग अलग आते हैं। बात समझो जरा, गंगोत्री से गंगा निकली तो एक जैसी निकली। अब वो हरिद्वार में तेज मिलती है और कलकत्ता में जाके जाके एकदम काली और मैली मिल जाती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। समझा कि नहीं? तो जो मेलापन है वो गंगोत्री का नहीं, वो कानपुर का मेलापन है, वो कलकत्ता का मेलापन है, वो बनारस का मेलापन है, गंगोत्री का मेलापन नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो ज्ञान की मलिनता है वो ज्ञेय और राग की मलिनता है, ज्ञायक की मलिनता। क्योंकि ज्ञायक से तो जो ज्ञान की पर्याय प्रत्येक समय में निकल रही है वो एक जैसी निर्मल 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 ही है। समझ में आया? और दूसरे नंबर की बात, आपको ऐसा लगा कि वहां का पानी मैला हो गया, पानी मैला हुआ क्या? निर्मल पानी था, निर्मल पानी है और निर्मल ही रहेगा। मैल मैल में है, पानी पानी में है। मैल और पानी की एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण हमें पानी मैला दिखा। जो पानी मैला हो जाए तो लाख उपाय के बाद में भी कभी शुद्ध ना हो, जबकि शुद्ध होता है, शुद्ध करने वाला पानी है। अगर वो अशुद्ध हो जाए तो कैसे काम चले? लेकिन संयोग के कारण, निकटता के कारण ऐसे ज्ञान ज्ञान अपूर्ण नहीं होता, ज्ञान विकारी नहीं होता, लेकिन राग और संयोगों की निकटता के कारण हमें ऐसा लगता ज्ञान तो निर्मल करने वाला, ज्ञान तो पूर्ण जानने वाला है, वही अगर मैला हो जाएगा तो निर्मल कौन करेगा? मुझे बताओ। समझ में आया? तो ज्ञान में खंड खंडपना ज्ञेयों के हिसाब से है और अखंडपना स्वभाव के हिसाब से। कि भाई 415वीं गाथा को जानने वाला ज्ञान, 414वीं गाथा को जानने वाला ज्ञान, पहली गाथा को जानने वाला ज्ञान, 31वीं गाथा को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान 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 सब जगह क्या है? एक समान। तो जो ज्ञेयकृत पॉइंट है, जो ज्ञेयकृत पॉइंट है वो मैं नहीं, और जो ज्ञानकृत पॉइंट है वो मैं। पुरानी समिति को जानने वाला ज्ञान और नई समिति को जानने वाला ज्ञान। तो ये पुराने और नया क्या पड़ा? ज्ञान का भेद है कि समिति का भेद है?
अब तुलना करके बताया कोई बात, ये पुराने की फोटो है, नई की फोटो है, पुराने की फोटो है, नई की फोटो। पहले 200 लोग बैठते थे, अब 1500 बैठेंगे। पहले बहुत सारे ऐसे थे, अब इतना बड़ा भव्य दिव्य। ये जो भी आपके ज्ञान में भेद पड़ा, ये भेद ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा कि ज्ञेय के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा? बोले जो ज्ञेय का पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं नहीं, जो ज्ञेय की रहता शुद्धता है वो मेरी, और जो उस ज्ञेय के पक्ष को गौण कर देता है और ज्ञान को आगे रखता है वो जितेंद्रिय। आई कि नहीं बात? किसको गौण कर देता है? घी को। गेकृत जो खंड खंड बना था, एक रोटी आपके सामने गरम आई, फिर दूसरी वही ठंडी आई, गरम अच्छी थी और ठंडी बुरी। शादी विवाह बफर में नहीं होता, पहली बार में अच्छा माना जाता है, फिर खत्म हो जाता है तो ऐड कर देते हैं। तो जो तुम कहते ये अंतर पड़ा, पहले अच्छा था अब खरा, ये किसका है? ज्ञान का है। अब तुम जब ज्ञान को ज्ञेय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तुम्हें खंड खंड पना दिखाई देता है, और जब ज्ञान को ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो अखंड पना दिखाई देता है। और जिसको अखंड पना दिखने लगा उसने इंद्रियों को जीत लिया। ये यहाँ है कि नहीं ये बात? पहले की अपनी फोटो देखो, अभी की अपनी फोटो देखो, पहले ऐसे न अब ऐसे। बोले ये जो भेद पड़ा, ये भेद किसके हिसाब से? ये बोले ये भावेंद्री, पुराना मैं और नया 50 किलो वाला और 75 किलो वाला। कौन? मैं, दूसरे का नाम नहीं लूंगा। है तो ये जो 50 और 75, 25 और 50, 25 साल वाला में और 50 साल वाला में, ये जो भी भेद पड़े ये किसके हैं? ये खंड खंड पर। तुमने ज्ञान को ज्ञान रूप में नहीं देखा, टूटा फूटा ज्ञान लिया, भंगार लिया। तो भंगार की कीमत तो भंगार जैसी होती, अखंड लेते बात अलग। अपने अभी मार्बल आ रहा है ना, अखंड का 18% GST होता है और टूटे फूटे का 5% है। बोल, इसलिए अखंड की कीमत है, खंड की कीमत नहीं है। लेकिन अखंड आत्मवस्तुओं में दिखती नहीं है। खंड पंड परचूरण चूरण खुरचन वो दिख रही। समझ में आया? इसीलिए हर जगह हाजिर जो ज्ञेय है उसे मत देखो, हर जगह हाजिर जो एक अखंड ज्ञायक है उसे। क्या बात हो रही है भैया? ये को नहीं तो देख नहीं दिए देखा वो गे, ये जो दिख रहा है तुम्हें जानने में उसका जोर मत रखो। जो देख रहा है प्रभु परमात्मा अंदर में विराजमान, उसका जोर रखो। जिसने उसका जोर किया उसने इंद्रियों को जीत लिया। जिसने ज्ञेयों का जोर रखा वो उसकी इंद्रियां जीत गई, और जिसकी इंद्रियां जीतती हैं उसका संसार फलता फूलता है, और जिसका ज्ञायक जीतता है उसका सिद्धत्व फलता फूलता है। इतनी बात को